lovelies, welcome back to my channel. My name is Kajal and I have secured all India rank 245 in NORCET 9. So today we'll be beginning with our important topic series. In this video, I'll be providing you the important topics for medical surgical nursing, and these topics that I'll provide you are based on the PYQs, and apart from these topics, I don't think anything will be necessary for you to look out for. So without wasting further more minute, let's begin with the video. So first we'll begin with your cardio. So take your pen and paper, start writing with me. और मैं ज़्यादा explain नहीं करूँगी topics. I'll try to put them brief ताकि video ज़्यादा stretch out ना हो and you get the important topics. So let's begin. First of all, in cardio, you should remember the basic anatomy of the heart. ठीक है, normal ज़्यादा deep में anatomy पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Normal things like your cardiac output and cardiac cycle, very important. Stroke volume normal. Cerebral perfusion pressure, वैसे तो ये brain का है but still, and pulse pressure. ठीक है. Along with that, your heart sounds. Heart sounds are very important. चाहे वो normal हो abnormal हो, you should know. And your BP. ठीक है. Next, your ECG. ये स्टार मार्क कर लेना कार्डियो में, और कुछ आए ना आए, ECG विल बी आस्क्ड टू यू. ECG हर टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन तुम्हें पता होनी चाहिए. फोटो देखते तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी ECG है. तो खुद के ब्रेन को ECG के लिए इस तरह से प्रिपेयर कर लेना. यू विल सी ECG क्वेश्चंस इन योर कमिंग NORCET 10 फॉर श्योर. हमारी बारी को भी बहुत पूछा गया था. तो ECG में यू कैन स्टार्ट विद योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ECG. यू शुड नो प्लेसमेंट ऑफ लीड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कौन सी लीड हम कहाँ लगाते हैं. Then reading and interpretation I already told you, and heart rate calculation, जो two methods हैं, small boxes and large boxes वाला, you should know. Then your location and auscultation of heart valves, it's very important, ये भी देख लेना. Then your ECG changes in all type of electrolyte disturbances, it is also star mark, especially hyperkalemia का तो बहुत पूछा जाता है. So next we'll move forward to your next topics, which is your hypertension and AHA classification. एक बार देख लेना AHA की जो classification है hypertension के लिए वो, and anti hypertensive drugs भी थोड़ी brief में, but you should know. ठीक है. Then your angina and its types, again an important topic. ठीक है, it should be known to you. Along with that, heart failure की कंडीशन भी देख लेना. Then your MI is very important, और अभी जो मैं MI में बताऊंगी that you should check. Management of course very important. Types of MI very important. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो NORCET में देखा जाता है वो ये है कि कौन सी टाइप ऑफ ECG लीड्स तुम्हें कौन सा MI बताती हैं, तो वो ज़रूर चेक करना. वो आया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है. देन योर कार्डियक मार्कर्स, एक बार वो भी दैट यू शुड नो. ठीक है, चेक कर लेना वो भी. Then your rheumatic fever is also an important topic, और इसका जो major minor criteria it is asked, don't skip it. Okay? और जो भी conditions में भी आगे बताऊंगी, इन सब में nursing management से related जहाँ से भी जो भी important मिल रहा है, you should know. ये मैं बार बार repeat नहीं करूँगी, I'm telling you now. Then your arrhythmias are very important, of course. And then pacemakers पे भी क्वेश्चन देखा गया है, कितने टाइप्स ऑफ पेसमेकर्स, उनके IBQs भी देख लेना. नेक्स्ट इज योर कार्डियोवर्जन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना. और उसके बाद आता है हार्ट ब्लॉक में अगेन ECG चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट ब्लॉक का क्वेश्चन अभी भी आया था. देन योर कार्डियक मॉनिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नर्सिंग केयर इन CABG ये भी इंपॉर्टेंटली देख लेना. देन और कार्डियोमेगेली में आप वो देखोगे जो इसका एक्सरे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होगा, तो एक्सरे उसका ज़रूर देख लेना. एंड देन वैस्कुलर डिजीजेस, अगेन एक मतलब मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बट एक बार आप उसका ना मतलब पढ़ लेना, डोंट स्किप इट. देन योर टाइप्स ऑफ शंट, अगेन इसकी जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का भी IBQ देख लेना. देन योर रेनॉल्ड्स डिजीज़, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी चेक कर लेना एक बार. ठीक है. देन योर DVT एंड वेरिकोज वेन्स, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट, और नर्सिंग केयर इज इंपॉर्टेंट. देन योर पेरिकार्डाइटिस, जो भी एंडोकार्डाइटिस वगैरह है, इन सब के कॉजेटिव एजेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं इनमें, वो चेक कर लेना. देन योर CAD कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड शॉक, ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, उनका ट्रीटमेंट शुड बी नोन टू यू. And antihypertensive drugs I told you. Cardiac tamponade, I have not seen much questions of it, but still मतलब take a look of it, right? So this was all about cardio, और मैंने वैसे भी starting में बोला था कि nursing management related to everything is important. Next I'll move to your nervous system.
नर्वस सिस्टम में भी अगेन योर बेसिक एनाटमी इज़ इम्पॉर्टेंट, और बेसिक एनाटमी में भी ब्लड ब्रेन बैरियर की जो वेसल्स हैं ना, जो सप्लाईज हैं, वो सारी एक बार विद इमेज देख लेना। वो मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था उसका, तो वो एक बार यू शुड बी दैट शुड बी नॉन टू यू। नेक्स्ट इज़ योर क्रेनियल नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं, एंड स्पाइनल नर्व इंजरीज वो भी ज़रूर देखना। एंड योर GCSP वेरी इंपॉर्टेंट, स्टामक कर लेना, हमारा पूछा जाता है, कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, तो GCSP इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मसल स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन आता है, डोंट स्किप इट। एंड योर ट्रोमा स्कोर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज्ड ICP के जो साइंस वगैरह हैं, ठीक है, वो सब भी चेक कर लेना। योर CVA अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टामक कर लेना, CVA। नेक्स्ट इज योर शायद स्पाइनल इंजरीज मैंने बोल दी है, हेड इंजरीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अलॉन्ग विद डैट, जो तुम नर्वस सिस्टम में जब एनाटमी पढ़ोगे ना, वहाँ पे एरियाज ऑफ ब्रेन डिफाइंड होगा, अगर तुमने नोट्स में बनाया होगा, वो एरियाज ऑफ ब्रेन भी देख लेना। देन योर पार्किंसंस डिजीज, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट्स मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेजेस, ये सब देख लेना। और GBS इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी स्किप मत करना। उसके जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, वो पूछा जा सकता है। अल्जाइमर्स डिजीज़, ये जो 3 डिजीजेज है ना, पार्किंसंस, GBS एंड अल्जाइमर्स, दे आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एपिलेप्सी का मैनेजमेंट शुड बी नोन टू यू, वो पूछा जाता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीजर अटैक हो रहा है, तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दैट शुड बी नोन। देन मेनिंजाइटिस, अगेन मेनिंजाइटिस के जो वो 2 इम्पॉर्टेंट साइंस थे, कर्निंग साइन एंड ब्रुड्जिन्स्की, उसको विद IBQ भी देख लेना। एंड देन योर मैस्थीनिया ग्रेविस, ये कंडीशन भी स्किप मत करना, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन दोनों को भी देख लेना। एंड द लास्ट टॉपिक इज एन्यूरिज्म को भी एक बार देख लेना, मतलब उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म होते हैं ना, और उनकी जो IBQs हैं वो चेक कर लेना, उसको भी स्किप मत करना। सो दैट्स ऑल फॉर नर्वस सिस्टम। नाउ विल मूव टू योर अदर सिस्टम, दैट इज़ हेमाटोलॉजी में बहुत थोड़े से टॉपिक्स हैं, तो वो देख लो। विच इज़ योर, जितनी भी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ना हिमाट में, वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो सारी चेक करना, जैसे MCV MCHC होता क्या है, ठीक है, और जितनी भी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, दैट शुड बी नोन टू यू। देन योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल्स में भी मैं बोलने वाली थी, बट हेयर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जितना भी यू हैव स्टडीड अलॉन्ग विद दैट नर्सिंग मैनेजमेंट वाला जो रोल है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ योर, जितने भी टाइप ऑफ एनीमियाज है ना, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, पर्निशियस एनीमिया हो, IDA तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, चाहे वो CHN से रिलेटेड हो, फिर तुम्हारी गायनी से रिलेटेड हो, तो IDA तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सिकल सेल एनीमिया मैं हाईलाइट करूँगी, जो तुम्हें पता होना चाहिए, और स्पेशली जो सिकल सेल क्राइसिस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी तुम्हें थोड़े थोड़े से पता होंगे, उनके साइंस पता होंगे, चलेगा, ठीक है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इनको स्किप मत करना, पढ़ लेना। हीमोफीलिया इज अनदर टॉपिक। एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड पूरा चलता है, दैट शुड बी नोन टू यू। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल इन योर हेमैट इज, जो तुम्हारी लैब वैल्यूज़ है ना, जिसमें तुम्हारी APTT वगैरह आते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस जब हेपरिन एंड वारफरिन हम देते हैं, तो उसमें लैब वैल्यूज़ में क्या चेंजेस आते हैं, दैट शुड बी नोन टू यू, और कब तुम्हें होल्ड करनी है डोज और कब तुम्हें देनी है, दैट शुड बी नोन। ये अभी PYQ नॉर्सन 9 में भी आया हुआ है, तो इसको स्किप मत करना। सो द नेक्स्ट सिस्टम आई एम मूविंग टू इज़ योर रीनल सिस्टम, ठीक है। तो रीनल सिस्टम में सबसे पहले जो भी नेफ्रोस रिलेटेड ड्रग्स हैं, दैट शुड बी नोन टू यू, नॉट सारी, बट फ्रूजमाइड इज समथिंग जो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लैब वैल्यूज़ हर एक सिस्टम की इंपॉर्टेंट है, तो अगेन रीनल की भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि तुम्हारे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कैसे लेते हैं, वो तो चल फंडामेंटल्स में भी आई टेल यू, बट तुम्हें पता होना चाहिए। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट वगैरह, इसकी वैल्यूज़ कैसे करते हैं, दैट शुड बी नोन टू यू। और वो तुम्हारा VMA है ना, विनाइल मेंडलिक एसिड टेस्ट, ठीक है, अब तो वो रिप्लेस हो चुका है विद अनदर टेस्ट, वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, दैट शुड बी नोन टू यू। तो वो सब तो था कि टेस्ट एंड लैब वैल्यूज जो हमें पढ़ने हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में योर एक्यूट किडनी डिजीज एंड योर क्रॉनिक किडनी डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। AKI में जो तुम्हारा राइफल क्राइटेरिया शुड बी नोन टू यू। CKD में एवरीथिंग रिलेटेड टू CKD इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो फेजेस चलते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कैसे करते हैं, शुड बी नोन टू यू, ओके। Next important stomach topic is your hemodialysis and peritoneal dialysis. Everything related to it, especially the nursing management.
और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिशुलास बनते हैं दैट शुड बी नोन. मोस्टली वही आता है कि हाउ डू यू पैल्पेट द फिशुला एंड लुक फॉर थ्रिल. और उसके अलावा तुमने बीपी कौन सी आर्म से लेना है, अगर वहाँ पे फिशुला क्रिएटेड है तो ठीक है, वो कितना टाइम लगता है मैच्योर होने में, और उन फिशुलास की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब पता होना चाहिए. देन योर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये पीड्स में भी आएगा, बट हेयर आई एम टेलिंग यू नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम ड्रग देते हैं, कितनी डोज देते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, IBQ के बेसिस पे भी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी, एवरीथिंग रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायड ऑफ कोर्स इसका जो होता है. देन नेफ्रोलिथियासिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. यूटीआई यू कैन लुक फॉर, ठीक है, अगेन वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी में फर्दर आ जाएगा यूटीआई. एंड यूटीआई में भी तुम्हारे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स और नर्सिंग मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे क्वेश्चन था तो इसको भी स्किप बंद करना, इसको पढ़ लेना. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी चेक करना. एंड योर हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसका एक ट्रायड है, वो तुम्हें पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज योर गाउट एंड पोलीनेफ्राइटिस, इनको भी देख लेना, ठीक है, ओवरऑल. तो दिस वाज ऑल फॉर रीनल सिस्टम. नेक्स्ट टाइम मूविंग टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर रेस्पिरेटरी साउंड एंड पैटर्न्स, चाहे नॉर्मल चाहे एबनॉर्मल. नॉर्मल भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि एबनॉर्मल वंस. डोंट स्किप इट. नॉर्मल पे भी क्वेश्चन आया है तो उसको स्किप मत करना, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर जो तुम्हारा हैमलिक मैन्यूवर है ना, चाहे वो एडल्ट्स में चाहे वो बच्चों में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसी में तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है, एरिया ऑब्स्ट्रक्शन, उसको देख लेना. बट हैमलिक मैन्यूवर के बारे में तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आता है. देन जो जितने भी तुम्हारे पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट. और स्पेसिफिकली जो तुम्हारी ब्रोंकोस्कोपी होती है ना, उसमें ये रिंगोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी, उसमें जो तुम्हें पता होना चाहिए उसको कैसे क्लीन करते हैं, इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि हम उनको कैसे स्टरलाइज करते हैं, दैट शुड बी नोन टू यू. देन जितने भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आई टोल्ड यू ऑलरेडी. देन गो फॉर योर लंग बायोप्सी. वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल्स का ही एक प्रोसीजर भी है तो लंग बायोप्सी को भी एक बार देख लेना. देन एलन टेस्ट इज योर स्टार मार्क, आएगा ही आएगा. एलन टेस्ट पे बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, और एलन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं इट शुड बी नोन टू यू, ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. नेक्स्ट इज योर पल्स ऑक्सीमेट्री वैसे फंडामेंटल्स में भी है, बट पल्स ऑक्सीमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से फिंगर पे कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एवरीथिंग शुड बी नोन. एंड देन कम्स योर लंग साउंड्स, आई टोल्ड यू. इसमें ही तुम्हारे में आता है वेंटिलेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेंटिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वेंटिलेटर कहीं अच्छी जगह से. देन आफ्टर वेंटिलेटर अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल टेल यू, विच इज़ योर COPD इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. COPD में जो भी नर्सिंग केयर होती है, ठीक है, और COPD को कैसे मैनेज किया जाता है मेडिकली भी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन योर एज़मा पे क्वेश्चन आते हैं, जो अस्थमा कह लो, एज़मा कह लो, तो उसको भी देख लेना, ठीक है, उसको स्किप मत करना. अब मैं जो टॉपिक्स बोलूँगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्यूबरक्लोसिस में तुम CHN में भी पढ़ोगे, ठीक है, अगर तुमने वहाँ से पढ़ लिया, जहाँ से भी पढ़ा, बस अगर तुमने एक सोर्स से पढ़ लिया, चाहे तुमने CHN में पढ़ा चाहे तुमने यहाँ पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है. रेज्यूमेज वगैरह उसके ध्यान से देखना. और उसमें ही तुम्हारा जो मॉन्टेक्स टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछा जाता है. मॉन्टेक्स टेस्ट तो आया हुआ है PYQs में, ट्यूबरक्लोसिस में भी पूछोगे क्या आया है, तो ये आया है, तो उसको मार्क कर लेना, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना. देन योर जो रेस्पिरेटरी फेलियर पे भी क्वेश्चन आता है. जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर है ना, उनके एग्जाम्पल्स लर्न करना, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो योर स्टार मार्क, ठीक है. देन योर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़, अगेन स्टार मार्क, ये चाहे तुम CHN में पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी नाम से ही पूछ लेते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन तुम्हारी जो फ्लेल चेस्ट होती है ना, फ्लेल चेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, चेस्ट इंजरीज में, उसको भी देख लेना. और बाकी जो तुम्हारे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे प्लूरल एफ्यूजन है, पल्मोनरी एडीमा है, न्यूमोथोरैक्स है, इससे रिलेटेड मैं बोलूँगी कि रेस्पिरेटरी में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो एक्सरे वाला पार्ट है, उसको देख लेना, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेना. बाकी जो इसमें स्टार मार्क थे वो आई हैव टोल्ड यू, ठीक है. बट इन सारी कंडीशंस के एक्सरेज भी देख लेना, इसको मिस मत करना, ठीक है. तो दिस वॉज अबाउट रेस्पिरेटरी. इन द लास्ट आई विल बी कवरिंग योर 2 सिस्टम्स. छोटे छोटे हैं और इतना ज़्यादा इसे फोकस नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको पढ़ने में.
विच इज़ योर इंटेग्यूमेंट्री एंड इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी में फिर भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. इंटेग्यूमेंट्री में आई वुड से कि जो भी तुम्हारी स्किन कंडीशंस है ना, लाइक शिंगल्स हो गया, सोरियासिस हो गया, डर्मेटाइटिस, स्केबीज, स्किन कैंसर का जो एक बार क्राइटेरिया ABCD वाला वो देख लेना. प्लस इन सब की ना जो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी नहीं होगा तो एटलीस्ट स्किन कंडीशंस की जो फोटोज़ है ना वो तुम्हें पहचान में आनी चाहिए. सिर्फ इतना एल से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्री में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. एंड इम्यूनोलॉजी में आई वुड से HIV AIDS तुम्हारा इंपॉर्टेंट ही है. मैंने तो CHN में से पढ़ा था, तो अगर तुमने वहाँ से पढ़ लिया तो इट्स सफिशिएंट. ठीक है. उसके अलावा एक्स्ट्रा फालतू मत पढ़ना कुछ भी. उसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि रेज्यूमेज जो हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, बेबीज़ होते हैं, उनमें कौन सा कैसे देते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन योर हाइपर सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपर सेंसिटिविटी को भी देख लेना, उसके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना. और लाइम डिजीज़, ये इम्यूनोलॉजी में स्टार मार्क है. लाइम डिजीज़ इज़ योर जैसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट वन, वो इसमें से ये है. ठीक है. सो आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद वेयर आई कम अप विद योर लेफ्ट ओवर सिस्टम्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. So till then, please subscribe to my channel, like, comment and share, and give suggestions if you want to give any. And take care of yourself, revise, do question practice and achieve your goals. I'm here for you all. Until then, take care. Bye-bye. Have a nice day.